So we are going to study about common topic which is life process. Life processes are defined as some basic metabolic activities which are essential for a human body to perform, or we can say not only a human body but for a living organism. Okay, life processes. What is life process? Let us just understand the meaning of life process first, then I'll be introducing you with some life processes without which a living body cannot work. So लाइफ प्रोसेस वो सारी एक्टिविटीज हैं जो एक लिविंग बॉडी के लिए जरूरी होता है करना. ओके, ऑल दोज activities which are very important for a living body to perform. Right. See, life processes, there are so many different life processes which are occurring inside a living body, so that each and every life process is adding something up to our life of a living organism. Right. हर एक लाइफ प्रोसेस, बी इट योर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, anything. Let me just write it for you. Examples. See, these are the few important life processes without which a living organism cannot work. Right? एक living body को function करने के लिए हर एक life process को properly at the particular balanced pace work करना जरूरी है. Right? अगर लाइफ प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है. प्लस इफ द लाइफ प्रोसेस इज नॉट वर्किंग एट दैट बैलेंस पेस, तब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करने में और काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है. राइट. सो आई हैव रिटन दिस 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस: डाइजेशन, respiration, reproduction and excretion. Let me just give a small brief idea of all these life processes. Digestion is that process by which the complex food or the food that we ingest breaks down into smaller pieces so that the energy can release out from those small pieces of food. Right? All the nutrients, they have to get digest means जब एक कॉम्प्लेक्स चीज को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हो, सो आप उनको एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. राइट. फिर वही जो स्मॉलर पार्टिकल्स यहाँ से बनते हैं, जो सिंपलर पार्टिकल्स यहाँ से बनते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है. जैसे आप मानो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल या सबसे स्मॉलेस्ट सिंपलर पार्टिकल अगर आप बात करो, दैट इज ग्लूकोज. सो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एटीपी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन. दैट मीन्स यहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोडक्शन इज देयर. राइट. देन reproduction is that process which helps a particular species to maintain its continuity. Right? हम बहुत नॉर्मली बात करते हैं, अगर एक स्पीशी को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी रेस को, राइट, अपने नाम को कंटिन्यू रखना है कि वो एक टाइम पे आके एक्सटिंक्ट ना हो जाए, गायब ना हो जाए, ऐसा ना हो कि लोग उनको भूल जाएं कि ऐसा भी कोई एक स्पीशी था या ऐसा भी कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास था. So to continue to maintain that continuity of one species, this reproduction is very important. So reproduction is the production of offspring or a progeny in order to maintain the continuity of one race or species. Right? So reproduction is very important, because if the reproduction is not there, a race or a species cannot maintain its continuity. और ये बहुत important है, because हम higher classes में पढ़ते हैं that one of the most important scientist of biology, which is Darwin ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन. राइट. उन्होंने उसमें कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर उन लोगों को सिलेक्ट करता है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जिनका सर्वाइवल रेट और सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होता है, एंड वो लोग जिनका सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा नहीं होता, वो उनको एलिमिनेट करता जाता है. राइट. दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. तो उस नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने बात किया था एक फिटनेस के लिए. राइट. एक फिटनेस की बात उन्होंने की थी यहाँ पे. राइट. एंड दिस फिटनेस इज इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस. ओके.
When we're talking about the fitness, then that fitness is in term of reproductive, right? Reproductive fitness का मतलब होता है that a particular living organism is capable to reproduce, right, at a good pace, so to maintain that continuity of their race, right? ये मैं बार बार बोल रही हूँ, reproduction is very important in order to maintain the continuity of one species or race. एक race को, एक species को continuity, उसके कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहीं से मैंने आपको एक और चीज बता दी जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, दैट रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी डार्विन ने, जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन बोला था कि नेचर सिर्फ उन लोगों को, बहुत सारी कैलेमिटीज, बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, उन नेचुरल कैलेमिटीज में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाते हैं विच आर नॉट रिप्रोडक्टिवली फिट, राइट, और वो रह जाते हैं जो रिप्रोडक्टिवली फिट होते हैं. सो एक लौती फिटनेस के बारे में डार्विन ने बात की थी, एंड दैट फिटनेस इज ऑफ रिप्रोडक्टिव, राइट. देन वी हैव एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू डाइजेशन, राइट. जो भी फूड डाइजेस्ट होता है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लिया जाता है, बट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, द अनवांटेड और नॉट अनवांटेड, अनडाइजेस्टेड एज fecal matter, right? We all know that. That process is known as excretion. Excretion क्या होता है? Excretion is the coming out of the undigested food, जितना भी food digest जो नहीं हो पाया, right? जो solid form में अभी body में present है, उसको fecal matter की form में body से बाहर निकालना ही excretion कहलाया जाता है, right? So these are some your life processes without which a living organism cannot function properly, right? Okay, one more important thing which is related to your these life processes is that nowadays, this is completely different from this topic, but it is somehow very important for you because ये आपको higher classes में भी मिलेगी और बहुत जगह पे आप इन चीज़ों को use करते हो. जैसे आज की हम बात करें, हम reproduction से लेते हैं, right? हमने बोला दैट रिप्रोडक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, सॉरी, जिनको विच आर नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग दैट, राइट. बट हमारी मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि वो उन ये फिटनेस ना होने के बाद भी उनको कुछ ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से दे कैन कंटिन्यू देयर रेस, राइट. से फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत कॉमनली आजकल हमको पता है IVF, राइट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट. दिस इज समहाउ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिकल साइंस जिसके बारे में हम आज अगर बात कर रहे हैं, सो दैट इज समहाउ इट्स नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस, ये कैस्केड प्रोसेस है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है. धीरे 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 इसमें एडवांसमेंट हुआ और आज के टाइम पे इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तो इतने ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं यहाँ पे मिली, राइट, बिकॉज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आई, बिकॉज अ मेल एंड फीमेल बोथ कैन सफर फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस और हर डिजीज को ट्रीट करके IVF में इंडल्ज करना इज वेरी डिफरेंट, राइट. So that different kind of diseases they come together, उन एक एक करके उनके बारे में जाना गया, उनको किस तरह से आप रिकवर कर सकते हो, उसके बाद इतनी सारे एडवांसमेंट लेकर आए. बट जब आप बात करते हो दो चीज़ों को मोल्ड करने की, या फिर जब आप बात करते हो कि हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, राइट. सो मॉडिफिकेशन की जब आप बात करते हो तो मॉडिफिकेशन आपको दो तरीके से दिखता है. बायो की दो फील्ड ऐसी हैं जिन दोनों में हम मॉडिफाइड बात करते हो, मॉडिफाइड सेल, मॉडिफाइड टिश्यू और अ मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. सो मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन टू different branches of biology and these two branches are genetics. ये तो मैं आपको खुद बता रही हूँ दैट दोनों ही ब्रांचेस में आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में को आप पूरा भी चेंज कर सकते हो एज अ होल, उसके किसी पर्टिकुलर सेल में आप चेंज कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर एनालॉग में आप चेंज कर सकते हो. सो एनी मॉडिफिकेशन डन इन a single cell,
a group of cell that is tissue or any molecular analog or as a living organism whole. पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी के किसी भी मॉलिक्यूलर एनालॉग में अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो so as to give a new quality to that living organism, that is known as modification, और वो हम दोनों ही ब्रांचेस में करते हैं. बट क्या ऐसा डिफरेंस था या क्या ऐसा कुछ अलग था कि हमको इतनी जरूरत पड़ गई कि इनको दो अलग अलग ब्रांचेस में रखने की जरूरत क्यों पड़ी, राइट? आप जेनेटिक्स में भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आप बायोटेक में भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो आप अलग अलग कैटेगरी में क्यों रख रहे हो, आप अलग अलग ब्रांचेस में क्यों रख रहे हो इनको, आप कंबाइन कर दो इनको, राइट? दैट इज द मेन डिफरेंस. एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की और बायोटेक की. जेनेटिक्स में जब हम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. दैट मीन्स जो भी आपका जेनेटिक हिस्ट्री होगा उसको मेंटेन करके हम ये करेंगे, राइट? सिमिलर स्पीशीज में आप मॉडिफिकेशन जब करते हो देन दैट इज जेनेटिक्स. ये आपको नाम से पता चल रहा होगा. जेनेटिक्स इट कंप्राइजेस फ्रॉम द वर्ड जीन्स, एंड जीन्स कहाँ से आते हैं? सिमिलर जीन्स आप कहाँ से लेकर आते हो? सिमिलर जेनेटिक हिस्ट्री से, राइट? सो सिमिलर जेनेटिक हिस्ट्री मतलब विद इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, जब सेम स्पीशीज के बीच में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो देन दैट इज जेनेटिक्स, राइट? मॉडिफिकेशन स्पीशीज then that is known as genetics. Genetics में वो सारे मॉडिफिकेशन आते हैं जब आप सेम स्पीशीज को ही मॉडिफाई करते हो और एक दूसरे के साथ में यूज करते हो, राइट? बट बायोटेक में यहाँ पे सिमिलैरिटीज की जरूरत हमको नहीं है, राइट? सिमिलैरिटीज की जरूरत हमको नहीं है. आप किसी भी दो अलग अलग इंडिविजुअल को मॉडिफाई करके और साथ में यूज कर सकते हो. देन दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, राइट? बायोटेक्नोलॉजी में भी मॉडिफिकेशन होता है बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है मॉडिफिकेशन, राइट? और इन सब को आप साथ में यूज कर सकते हो, कंबाइन करके यूज कर सकते हो. अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस, राइट? यहाँ पे आप सेम चीजें यूज कर रहे हो, राइट? आपने सेम स्पीशीज आप यूज कर रहे हो, राइट? एक ही स्पीशीज में चेंज करके बार बार और उसी को मॉडिफाई कर रहे हो, उसी को यूज कर रहे हो. यहाँ पे आप दो डिफरेंट, से फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके आपने ह्यूमन में आपने इंजेस्ट करा दिया, राइट? दैट मॉडिफिकेशन जो आपने बैक्टीरिया से ह्यूमन तक पहुंचाया, अब क्या हो गया? देखो स्पीशी अलग अलग हो गई, बैक्टीरिया अलग है, ह्यूमन अलग है, तो दोनों स्पीशीज में आपने दो अलग अलग स्पीशीज में आपने काम करके कुछ नया मॉडिफाई करके कुछ नई चीज बनाई, देन दैट विल कम अंडर बायोटेक. बट जब आप से फॉर एन एग्जाम्पल आपने बैक्टीरिया को चेंज करके और दूसरे बैक्टीरिया में ही इंजेस्ट कराया सो टू मॉडिफाई इट, तो दैट विल बी कंसीडर अंडर जेनेटिक्स, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी जो हमको पता नहीं होती है. जब हम बायो की बात करते हैं सो वी हैव नंबर ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड टिल योर 12th स्टैंडर्ड जो आपको कुछ जेनेटिक्स का पार्ट बताते हैं, कुछ आपको बायोटेक का पार्ट बताते हैं. 11th में 12th की बायो में वी हैव अ डिफरेंट यूनिट जो बायोटेक के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे हम दो चैप्टर्स के बारे में पढ़ते. दिस इज द इनिशियल थिंग्स अबाउट बायोटेक, राइट? और जेनेटिक्स अलग है, तो क्यों जेनेटिक्स में भी आप मॉडिफिकेशन पढ़ते हो, बायोटेक में भी आप मॉडिफिकेशन पढ़ते हो, तो ये हमको इनिशियल पेज से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके रखती हैं कि आप क्यों इन दो चीज़ों को अलग अलग पढ़ा रहे हो जब दोनों में ही मॉडिफिकेशन हो रहा है. तो मॉडिफिकेशन तो हो रहा है लेकिन मॉडिफिकेशन किस लेवल पे हो रहा है, सेम चीज़ों में हो रहा है, अलग अलग चीज़ों में हो रहा है, इसके बेसिस पे हमने दो अलग अलग ब्रांचेस रखी है, राइट? अगर सेम स्पीशीज में हो रहा है देन दैट इज जेनेटिक्स, और डिफरेंट स्पीशीज में होकर मॉडिफाई होकर कुछ नई चीज़ बन रही है देन दैट इज योर बायोटेक, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस.